नमस्कार। संसद में होने वाली जनहित की चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 यानी एनसीटीई पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने से बीएड, एमएड, डीएड और अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिली है। साथ ही उन संस्थानों को भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी जिन्होंने पाठ्यक्रम लागू कर दिया है लेकिन उन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। विधेयक से 23 विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को पूर्व प्रभाव से मान्यता मिलने से छात्रों को लाभ मिलेगा। विधेयक के जरिए अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम यानी एनसीटीई 1993 में संशोधन किया गया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पास हो चुका है। Shri Abir Ranjan Viswas. Sir, I support the bill's intention for protecting the careers of the hapless individuals who joined these institutions with the dream of becoming trained teachers. However, these institutions did not clearly meet the National Council for Teacher Education minimum quality standards and they were not permitted the recognition. Therefore, granting retrospective recognition to teachers who have emerged from these institutions after a half-baked training program could well jeopardize far more careers of children emerging from such system in future than the bill seeks to safeguard in the present. Also, sir, those being granted retrospective recognition must be assessed and made to pass a remedial course or training program by the NCTE. This would fill in any gaps that might have arisen during their training at institutions which were deemed not worthy of being granted permissions for failing to attain the NCTE minimum quality standards or for reasons whatever. Sir, we understand almost 1 in 4 government schools that a student-teacher classroom ratio is greater than 30 as provided by the DICE data. The need for teachers is very important, but also at the same time, sir, the government should not overlook the importance of recruiting teachers with quality training as the RICAR framework recognizes the preeminent role of teachers in providing basic education of good quality. Sir, India continues to fare badly in the well-regarded ASER annual status of education report. So they have found that only 27.7% of students in class 3 could perform simple subtraction. Only 32% could read simple English words. And in class 8, it was found that only 45.2 students, percentage of them, could read simple English sentences. So, sir, looking at all these, it can be said that India must first and foremost improve monitoring at various levels to have robust and reliable education statistics. Because whereas we are having government data such as DICE and NSSO to provide, and also sir, ESSER and credible institution to provide data for the quality of learning that is being done by the students, there are no credible data source for finding out the quality of teaching that is being done. So, sir, I would like to conclude by saying, to be more transformational, government should not overlook the need to ensure quality teaching and also see all are deployed where required. The existing laws governing the NCTE in India needs to be reformed and address these requirements, towards which this bill has taken a step in the right direction. But sir, many more such steps need to be taken with, and that which much delay. Thank you. धन्यवाद अबीर रंजन जी। श्रीमती कहकशन परवीन। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि ये विधेयक जो है वो शिक्षा और शिक्षकों के से जुड़ा हुआ है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की वहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करती है और ये जो बिल है वो शिक्षक और शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य जो है कि लाने का ये है कि जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है उन्हें भूलत्वी प्रभाव से उस संस्था को मान्यता देना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टीचर्स जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले लिए हैं जिन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गई है लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं। इस बिल के पास हो जाने से उनकी समस्याएं दूर होंगी और जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है इससे भी हमें निजात मिलेगा।
एक छोटा सा सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहती हूँ कि ICTE की जो टीम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जांच के लिए जो मान्यता प्राप्त के लिए जब जाती है तो वहाँ तो जो कमियाँ देखती है उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए वो बताती हैं और जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के लोग हैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फिर पुनः वो टीम जाती है तो उसमें वो लोग नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे लोगों को उस टीम में भेजा जाता है। इससे क्या है कि फिर दूसरी टीम जाएगी, जो कमी उन्होंने पूरी की है, जो मानक उन्होंने पूरा किया, फिर दूसरे लोग जाएंगे, फिर दूसरे तरह से उनको बताएंगे कि ये कमी है। तो इसलिए किसी भी जगह अगर जांच के लिए कोई टीम जा रही है तो वो एक ही टीम रहनी चाहिए और वो टीम वो समय पर जाए और वहाँ पर जो भी कमियां हो वो पूरी करने की कोशिश करे। इससे क्या है कि जो लोग वहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनको भी ये डर ना लगे कि इन्हें मान्यता मिलेगी या ना मिलेगी, उन्हें नौकरी कहीं खतरे में ना लगे। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। मंत्री जी, पॉइंट है उसमें। श्री के रागेश। Thank you, Chairman, sir. This bill seeks to grant retrospective recognition to certain institutes and also provides permission to the retrospective permission to new courses that had already been started. At the very outset, I want to know from the Honorable Minister which are those institutes that are benefited out of this bill. And I also want to know whether any private institutes are involved. But at the same time, who is responsible for this serious lapse? That has to be noted. As we all know, the future of our country is being shaped in classrooms. And it is our responsibility to ensure quality teacher education so that quality education in schools can also be ensured. And, but unfortunately, what is the state of affairs that exists in the field of teacher education at present? We are witnessing a mushrooming growth of teacher education institutions in our country, especially during the last 2 decades and all. But at the same time, in these institutions, more than 50% of the total seats are lying vacant. How can it be possible? Seats are lying vacant, students are seeking for admission, but they are denied of admission in those institutions. And why it happens? Because after the TMA Pai case judgment, all these private institutions are given unfettered freedom in deciding a fee structure and admitting students according to their own whims and fancies, according to their own definition of merit. And that is why in these private institutions, needy students, socially and educationally backward sections, students among those sections are denied of education, admission, because they are not able to pay the exorbitant fee. So I want to know whether, from the Honorable Minister, whether are you going to regulate these institutions, empowering the state governments to regulate fees and admissions in those institutions, so that socially and educationally backward sections are getting admitted in these institutions. Thank you. And again, NCT must be filled up with academicians, not with bureaucrats. Okay. And again, sir, we have to reorient the entire teacher education in our country, because the teachers must be equipped with newer technologies so that they can use ICTs in classrooms. Thank you, Ragesh. Professor Mano Kumar. We have to consider that also. So this bill, NCT, it tells you the entire story when you look at the section 14, which says shall be 3 pointers and says shall be deemed to have been recognized by the regional committee. We know the kind of anomalies which were there. We know there were serious problems with the structures and the process. That's why I stand in favor of the passage of this bill. Having said that, sir, we also should realize it's a post facto arrangement. And such post facto arrangements should be rare in the rarest of the rare cases. I don't wish to see a situation 15 years later, हम फिर यहाँ बैठे और फिर इस तरह का एक बिल पास करें कि बिना प्रक्रियाओं और पद्धतियों के इस तरह के कुछ केसेस हो गए जिनसे छात्रों का बहुत नुकसान हुआ। दूसरी चीज जो मेरे कुछ साथियों ने उठाई और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं सर, whether we belong to left, right, left of the center, right of the center or the center, we must realize
that democratic socialism tells you to go back to public funded education and health. मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 91 के बाद एक हवा चल पड़ी कि सब कुछ बाजार तय करेगा। सर, बाजार प्रॉफिट और लॉस पे चलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर बाजार के हिंसक मनोवृत्तियों को खुला छोड़ दिया अगर हमने, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे समाज की जो हिरार्की है वो और लहूलुहान होगी, वो और बलवती होगी। सर, मेरा ये भी कहना है कि हर दल ने कभी न कभी अपने बनने और बढ़ने की प्रक्रिया में कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की है। सर, वक्त आ गया है कि सदन एक साझा स्वर में कॉमन स्कूल सिस्टम की ओर वापस जाए। सर, यह तय होना चाहिए कि महामहिम का बच्चा और सड़क पर काम करने वाला एक मजदूर, उसके बच्चों की शिक्षा में फर्क होगा ना सर, तो नियति में भी फर्क होगा। सर, डेस्टिनी यही चीज हुआ करती है। मैं ये चाहूंगा, और आखिर में सर, मैं एजुकेशन हैज टू बी व्यूड विथ अ सीरियसनेस। सर, इन दिनों कई जगहों पर हमने देखा है व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर निर्णय हो रहे हैं। सर, नहीं सर, ये तय करना होगा कि शिक्षा में अगर आपको मौलिक सुधार करना है, गुणवत्ता की बातें करनी है, तो वो एक ऐसा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि उसमें तमाम दलों की एक समेकित राय हो, ताकि हम जो चाहते हैं कि शिक्षा घर घर पहुंचे, हर घर में चिराग हो, वो हो पाए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मनोज जी। अच्छा, सुशील जी बोलेंगे। सर, मैं ये कहता हूं एनसीटी को शिक्षक तैयार करने का दायित्व हिंदुस्तान के अंदर दिया गया। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा यदि है तो उसकी सबसे बढ़िया क्रिएशन इंसान है, और इंसान की सबसे बड़ी धरोहर उसका बच्चा है। वो शिक्षकों के हाथ में सौंपता है कि इसको तराशो, इसको निखारो, ये पूरी दुनिया के अंदर मेरे नाम को रोशन करे। ये जो शिक्षण टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, इतनी लापरवाही से आज काम कर रही है। हम रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए रिकॉग्निशन देने के विरोध में बिल्कुल नहीं है, परंतु जिन अधिकारियों ने इसके अंदर लापरवाही बरती, कम से कम उनकी एक इंक्रीमेंट रोक दी जाए। मैं कॉपलोट कमेटी के माध्यम से इनके अकाउंट्स की जांच करने की बात कर रहा था। इन्होंने कहा कि रीजनल कमेटियां ने हमें अकाउंट्स नहीं भेजे, इसलिए हम इसका ऑडिट नहीं करा पाए, संसद के समक्ष रख नहीं पाए। मैंने कहा इसका इलाज, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो 4 रीजनल कमेटियां थी वो हमने दिल्ली में बुला ली है, ताकि बैलेंस शीट समय पे दे पाए, और उनके ऑफिस दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए। सारे हिंदुस्तान का निरीक्षण करने के लिए अब व्यक्ति दिल्ली से जाएंगे। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो उनका ऑफिस वहां पे रहने चाहिए। इस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की वजह से हमारा आरटीई फेल हो चुका है सर। 36 में से 20 स्टेट के अंदर एक भी बच्चा आरटीई के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि जो टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर ट्रेन करने चाहिए थे, जिस तरह का करिकुलम बनाना चाहिए था, जिस प्रकार की अच्छी ट्रेनिंग टीचर्स को देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए। मजबूरी के अंदर दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग दिलाई ताकि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सके। मजबूरी के अंदर यहाँ के प्रिंसिपल्स को आईआईएम जैसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग दिलाई दिल्ली के बच्चों, दिल्ली के प्रिंसिपल्स को, ताकि अच्छे स्कूल चला सके। ये दायित्व एनसीटी ही का बनता है। मैं कहता हूं कि जब भारत का भविष्य इनके हाथ में है तो इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का भविष्य बिगड़ ना सके। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। श्री राम कुमार कश्यप। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के पास होने पर बीएड एवं अन्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो संस्थान चला रहे हैं, उनको जो है एनसीटीआर से की धारा 214 के अंतर्गत उनको मान्यता लेनी होगी, और जब उनको मान्यता मिल जाएगी, जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं, जो उससे पहले पढ़ चुके हैं, उनको रोजगार का उनके अवसर खुल जाएंगे। साथ में 2 बातें कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सर, सबसे पहले आज हमारे देश में बहुत बेरोजगारी बहुत है, और ये बिल जो है रोजगार की बात करता है। तो जो शिक्षक यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, क्या वास्तव में उनको कब और कितने दिनों के बाद उनको नौकरी मिल पाएगी, क्या ये बिल उसकी गारंटी करेगा? एक बात। दूसरी,
इस बिल ने यह भी देखना होगा जितने छात्र वहां पर एडमिशन लिए क्या वास्तव में वो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं घर बैठे वो काम कर रहे हैं। राम कुमार जी धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर संसद संवाद। इस बिल का मूल उद्देश्य एक एनोमली जो ध्यान में आई वो दूर करना है। जो 17+6 23 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने ये काम विदाउट परमिशन 2011-12 में शुरू किया, हमारे जब ध्यान में आया तब हमने उसको तुरंत ये किया कि आगे से 2016-17 से उनको परमिशन लेने को लगाया, और परमिशन लेने के बाद जो बीच का पीरियड है वो पीरियड अब लीगलाइज करने की बात है, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं तो सफर होंगे, उनके हाथ में डिग्री रहेगी लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर भी गहन चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संशोधन से बीएड, एमएड, डीएड और कई अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन 10,000 डिग्री धारकों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को अब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। विधेयक के तहत ऐसे 23 केंद्रीय और राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शामिल किया गया है। श्री हुसैन दरवाए। ये बिल लाया गया है मिनिस्टर की तरफ से कि रिट्रोस्पेक्टिव उनको रिकग्निशन देने का। इससे बहुत गलत प्रथा पड़ी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी बड़ा धंधे की बात हो गई है। लोगों को एजुकेशन देने के बजाय उससे पैसा कैसा कमाने का, इसके बारे में ज़्यादा बात होती है। तो मैं मंत्री जी को ये अनुरोध करूँगा कि इस तरह का हो सकता है क्या, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस करने के बजाय जो वहाँ से पढ़ के बाहर आए हुए हैं, ऐसे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको रिकग्नाइज कीजिए लेकिन इंस्टीट्यूशंस मत कीजिए। महाराष्ट्र में मैंने देखा है जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लाइब्रेरी और लैब वगैरह छोड़िए, इमारत भी नहीं रहती, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं ऐसी जगह बीएड और डीएड कॉलेज निकाले गए थे। तो ये कहाँ न कहाँ इसके ऊपर बंधन आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात ऐसी है कि ये मेरे समझ में नहीं आया, ये सारा रिकग्निशन करने का काम जो है एनसीटीई करती है, तो आज ये गवर्नमेंट अपने हाथ में क्यों लेती है? गवर्नमेंट ने एनसीटीई से बात करके इसके बारे में कुछ निर्णय लिया है क्या कि एनसीटीई आप खत्म ही करना चाहते हैं? सारे टीचर्स को फिक्स सैलरी दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो है वो बिल्कुल निकाल दीजिए, सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, ट्रेन शिक्षक रहेंगे और शिक्षक के लिए जो महोदय देश में 18,600 संस्थान बीएड, डीएड और बीपीएड के कोर्स चला रहे हैं। इनमें प्राइवेट, सरकारी और एडेड संस्थान भी हैं जिनका एनसीटीई ने कोई सर्वे नहीं किया है। अतः इन संस्थानों की मॉनिटरिंग कर अनुज्ञा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे छात्रों के भविष्य को अंधकार होने से बचाया जा सके, उनको ज्ञान व गुणवत्ता शिक्षा हासिल हो सके, कि इन रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। महोदय, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं कि SC/ST के छात्रों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66% SC, 59% ST हैं, जो देश की साक्षरता दर 73% से काफ़ी कम है। अतः मैं मांग करूंगा कि मंत्री जी इस वर्ग की विशेष के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की विशेष नीति बनाएं। महोदय, SC/ST OBC मदरसों, हॉस्टलों की हालत खराब है। यहाँ भवन, शौचालय, बिजली, पानी, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महोदय, SC/ST OBC वर्ग के लिए जो घोषणाएं होती हैं वह समय पर लागू नहीं होती हैं, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। महोदय, आज जो मिड डे मील के माध्यम से में जो शिकायतें आती हैं स्कूलों में, मेरा सुझाव है कि जो बच्चों को
अध्यापकों के द्वारा जो खाना बनाकर दिया जाता है वो अध्यापकों को उसमें ना लगाया जा करके सीधा सीधा बच्चों के गार्जियंस को अगर वो पैसे दिया जाए। इसके साथ साथ महोदय मेरा जो अंतिम एक सुझाव है कि आज जो प्राइमरी के टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालयों के टीचर हैं, उनको समय समय पर कभी जनगणना की ड्यूटी में लगाया जाता है, कभी किसी ड्यूटी में लगाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादातर देश के गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, एसटी और ओबीसी के, उनकी शिक्षा इससे प्रभाव होती है। तो इसलिए उन अध्यापकों की शिक्षा उनको बढ़ाया जाए और उनको उस काम में न लगाया जाए, सिर्फ पढ़ाई पे लगाया जाए। दूसरा महोदय एक बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षा समान होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से, पूरे देश में हर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाए। धन्यवाद। Sir, this bill shows that the government is succumbing before the arm-twisting strategy of the sellers of education. This is the outcome of our socio-economic and political conditions where market dictates everything. Sir, because of that, education has become a matter of commerce. In the various parts of the country, like mushrooms, they build the institutions to sell education. Sir, the government should have gone to the Verma Commission reports before you come with the amendments. In 2017, they gave a report to you. The Quality Council of India also made studies on education institutions in 2017. You forgot about that. If that was read seriously, some more practical and serious propositions have been made in this bill itself. Sir, that is missing in this bill. Sir, there is a lot of saying about our educational values in the country. More than everyone else, Dr. Kothari has stated that the destiny of India is being framed in her classrooms. Right. Sir, what is happening there, sir? In the classrooms, no real education takes place. There what happens is that people are taught about selling and trading. So the values are now tumbled down. This has to be addressed very seriously. Please conclude. Sir, Mata, Pida, Guru, Daivam. Daivam is gods. Even God comes after teacher. But that teachers are being trained in atmosphere of profit-making atmosphere, and then we can imagine what will happen to the in the future. Sir, this National Council for Teacher Education Amendment Bill is not comprehensive, sir. Sir, this bill, you have brought it to legalize the illegal colleges. That is what I understood, and you have accepted in this. Those colleges who have not permission and trained the students, now you are legalizing them. But this should be a comprehensive bill in teachers' education. Teachers' education is suffering in a big way in the country, sir. Sir, in the last budget, the finance minister says, improvement in quality of teachers can improve the quality of education in this country. So we will initiate integrated B.Ed courses, sir. Sir, what has happened after that statement? We have only 4,000 students in the integrated course studying in the country, whereas 17 lakh students are taking teachers' education, which will be 0.002%. So I wanted to tell you, the teachers' education, especially the NCFTE has said in 2010, training of teachers is extremely inadequate and poorly managed in our country. That is not taken care in the bill. Sir, the new education policy 1986 recommends for professionalism in the teachers' education. The quality of Indian education is limited by its quality of teachers. That is what it says. According to the UNESCO Global Education Monitoring Report 2016 says, India is among 128 countries. Our number is 105 in teachers' education, particularly in teachers' training. Annual status of education report says 14 to 16 age group, there are lacking of skills and even arithmetic. So I wanted to suggest, particularly, you must have the teacher training survey in this country to happen first. Second part is, sir,
17,91,400 people are now pursuing teachers education. Out of which 1,313 colleges are only government colleges. 16,336 colleges are private colleges. Most of the private colleges, they don't have infrastructure. Okay. So the government of India has to have a control over it. Sir, other factor, you please open more government teacher education colleges. Thank you, Hanumanthaya ji. So that we will have a better trained teachers for the future. Thank you. Thank you very much. पूरे सदन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। ये एक छोटा बिल है जिस बिल का मूल उद्देश्य एक एनोमली जो ध्यान में आई वो दूर करना है। एनोमली क्या है? ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सारे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो 17+6 23 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने ये काम विदाउट परमिशन 2011-12 में शुरू किया। हमारे जब ध्यान में आया तब हमने उसको तुरंत ये किया कि आगे से 2016-17 से उनको परमिशन लेने को लगाया, और परमिशन लेने के बाद जो बीच का पीरियड है वो पीरियड अब लीगलाइज करने की बात है, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें नहीं तो सफ़र होंगे, उनके हाथ में डिग्री रहेगी लेकिन उसको कोई मान्यता नहीं होगी। और इसलिए इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ NCERT खुद, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मेनी यूनिवर्सिटीज़, ये सब यूनिवर्सिटीज़ का ही कोर्सेज थे। और इसलिए जो एक विषय पैदा किया कि ये बिल क्यों लाना पड़ा। इस तरह से इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अगर लापरवाही करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होगी, हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को यूनिवर्सिटी में कहा है और यूनिवर्सिटीज़ वो काम कर रही है। लेकिन इस निमित्त से बहुत अच्छी चर्चा हुई। पहले तो ये है कि टीचर का महत्व बहुत है और टीचर एजुकेशन का पूरा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इसलिए अब हमने इंटीग्रेटेड बीएड की कल्पना रखी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हम आगे से केवल इंटीग्रेटेड बीएड को ही मान्यता देंगे। 2020 से लेकर एप्लीकेशन इसी साल मंगाएंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में बीए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बीएससी पढ़ाया जा रहा है, वही अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू होते हैं तो वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत अच्छे चलेंगे। जैसे लॉ का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और वो सक्सेस हुआ है, वैसे ये भी होगा। लेकिन तब अभी जो बीएड है वो तुरंत रद्द नहीं होता है। जैसे लॉ का डिग्री प्लस 2 ईयर का LLB होता है, वो अभी भी चलेगा, लेकिन इंटीग्रेटेड है वो ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसमें ज़्यादा नौकरियां मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अभी नए बीएड और डीएड कॉलेज खोलने की परमिशन हम नहीं दे रहे। पिछले 3 साल से 0 ईयर किया है, क्योंकि आगे से परमिशन केवल इंटीग्रेटेड बीएड की ही मिलेगी। ये भी सच है कि अनेक माल प्रैक्टिसेस थे, 17,000 से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट बढ़ गए बीच के दिनों में, और उसको चेक करने के लिए हमने सबसे एफिडेविट लिया, उनकी वीडियोग्राफी का ये मांगा कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो सबके एफिडेविट हमारे पास आए हैं और उसकी शिनाख्त जारी है, लेकिन मैटर कोर्ट में भी है, इसलिए उसमें थोड़ी रुकावट आई है। एक मुद्दा उठा, लोगों ने बहुत जगह पूछा कि मूल टीचर एजुकेशन में सुधार करने का बिल चाहिए। वो आएगा, क्योंकि उसमें एनसीटीई का रीजनल कमेटी का जो विषय आया, कानून ऐसा बन गया एनसीटीई का कि जिसमें रीजनल कमेटी को बहुत ज़्यादा अधिकार है और नेशनल काउंसिल को कुछ भी अधिकार नहीं है। और इसलिए ये जवाब लोकसभा में देना पड़ता है कि रीजनल कमिटीज़ ने हमें हिसाब नहीं दिया, इसलिए बैलेंस शीट नहीं दे पाए। तो ये जो है स्थिति, इसको दुरुस्त करेंगे और टीचर एजुकेशन का जो प्राण है कि अच्छे टीचर पैदा हो, उसके लिए काम करेंगे। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं। 17 लाख टीचर्स, 14 लाख टीचर्स ऐसे थे कि जो पढ़ा रहे थे लेकिन केवल 12वीं थे, उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं था। उसके लिए हमने स्वयं ये अपना जो पोर्टल है उसके तरफ से
ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज शुरू किए। उसमें मुझे खुशी है कि जब हमने ये पिछली बार हमने 2 साल उसको एक्सटेंशन दिया था, तो एक्सटेंशन का फायदा उठाते हुए सभी 14 लाख टीचर्स ने रजिस्टर किया। उनकी अब अच्छी पढ़ाई हुई। उसमें लेक्चर है, मटेरियल है, ट्यूटोरियल है, डिस्कशन फोरम है। हर 2 सप्ताह में एक बार टीचर्स इकट्ठा आते ब्लॉक स्तर पे या छोटे जगह पर भी जहाँ जैसी संख्या है, और उनको पढ़ाया जाता है वहाँ भी, और रिमोटली भी पढ़ाया जाता है। लेकिन वो आशंकाएं पूछ सकते हैं। 3 परीक्षाएं हुई है और अभी 4थी फाइनल परीक्षा मार्च में होगी। एक साथ 14 लाख टीचर का ये प्रोग्राम डीएलएड का बहुत सफल हुआ है, और ये मुझे घोषित करते हुए बहुत आनंद है कि ये करेंगे। और इसलिए बाकी सारे मुद्दों को हम देखेंगे और उसमें निश्चित सुधार करेंगे, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान न होवे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने प्रशिक्षण की बुनियादी जरूरतों और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत पर भी जोर दिया। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदन को बताया कि 2020 से सरकार देश में बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड के तौर पर एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि 4 साल पहले शिक्षा पर कुल खर्च 63,000 करोड़ रुपए था, जो अब 1,10,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी के साथ संसद संवाद के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।